done. Okay. Now all of you please be muted. When I will ask, then you can give the answer. So yesterday we were doing this article 6.31, page 73, and now all of you have soft copy of the book. So we are proving that chord of contact. What is chord of contact? If you have a pair of line, I can draw it by taking line also. Suppose you have pair of contact like this. And conic I am taking. Any conic you can plot like this, which is just touching it. Okay, now this figure is quite better. So yeah, so what? So you have two things here, means two line tangents. You know, if you have a point outside from the conic, you can always draw two tangents which will be touching this, and we have this point P, x dash y dash, and here where they are touching, you can join these two point of contact through a line, which is called your chord of contact. This is your chord of contact. Suppose this was a point A, x1 y1, this was a point B, x2 y2, and this is your S is 0. This is a conic which we are considering. So you know, if you know 2 points, you can find easily the equation of the line, है ना? ये हम निकाल सकते हैं easily. If you know, sir, S0. S0 means S your this ax square plus 2hxy, this thing, by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ये हम कोने की इक्वेशन लेते हैं ना, जो इक्वेशन. So I will take equal to 0. What is the surprise? Yes. है ना, इक्वेशन है तो it is equal to 0. So we solved it. So yesterday we got two equations. जब हमने से solve किया था, what we did, it is S. Now you can find the equation of tangents. So you have two tangents PA, tangent PA. इसकी इक्वेशन आपकी आ रही थी AX. It was AX x1 plus H x y1 plus x1y and so on. And I'm not writing again. It is already there in the shared lecture. And similarly, one tangent is PV. This equation you can find also AX x2 plus H x y2 plus x2y plus and so on. So these two equations. Now because both the tangents are passing through P, so this point P will satisfy here. So P satisfies both equation. इसको मैंने 2 number दिया था, इसको 3. So P satisfies 2 and 3, है ना? This thing I have done, it is just I am recap. It is recap, not new thing. That's why I am writing it fastly. So P satisfied 2 and 3. You can put the point here. So you will be getting AX dash x1 plus H x dash y1 plus x1 y dash and so on. It is equation 4. Similarly, you can put in third equation. So you will be getting AX dash x2 plus H x dash y2 plus x2 y सर dash. फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ था. है, यहाँ तक तो कर लिया था. आई थिंक 4 5 लिख दी थी मैंने. नहीं सर, फोर्थ तक ही हम लोग लिखवा रहे थे, उसके बाद कट गई थी. अच्छा चलिए ठीक है. तो फोर्थ इक्वेशन में क्या है, आपने 4 रखा तो ये 4 हो जाएगी, है ना, इज इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली जब 5 में थर्ड में रखेंगे तो x की इस इक्वेशन में सिमिलर इक्वेशन होगी, बस यहाँ x1 या x2 होगा, है ना. क्या होगी, इसे पूरा लिख देता हूँ. चलो मैं 5 को पूरा लिख देता हूँ. तो 5 इक्वेशन विल बी x dash y2 plus x2 y dash plus b y dash y2 plus g x dash plus x2 plus h यानी f y dash plus y2 plus c is equal to 0, है ना. ये इक्वेशन 5 है.
बस 4 में क्या, in place of x2 xy2 you have x1 y1. So these two equation, how it look like, you can see these two condition look like that your equation of line satisfying. So here you can write the above conditions suggest that the points A x1 y1 and B x2 y2, they lies on the straight line. They lies on the straight line. Short में मैंने स्टील दिया था, straight line. A x dash plus h x y dash plus x dash y plus b y y dash plus g x plus x dash plus f y plus y dash plus c is equal to 0. देखिए ये जो आपकी क्वेश्चन 4 और 5 है, ये क्या है, it looks like that your this equation satisfying point A and point B है ना, ये तो हुआ. Point A रखेंगे तो equation 4, point B रखेंगे तो equation 5. It means what? This is the equation of chord of contact. This is the equation of chord of contact. This, क्योंकि these two points also satisfying, तो ये line क्या हो रहा है, this line passing through A and B, तो ये line passing through A and B, it will be satisfying, या satisfy कर रहा है, तो this will be a equation of a line. और अगर आप देखें ये क्या है, it is look like your equation of tangent, है ना, this tangent equation में तो ये लिखते थे हम, लेकिन क्या डिफरेंस होता था, इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x डैश y डैश पॉइंट कहाँ थे, ऑन द कोनिक, है ना भाई. ये जो आपके पास निकल के आई है इक्वेशन जो मैंने ब्रैकेट में बंद करी है, व्हाट इज दिस, दिस इज द, इसे अगर मैं नंबर कर दूं 4 5 6, इट इज 6. सो दिस इक्वेशन 6, दिस इज द इक्वेशन of chord of contact of tangents through x dash y dash. तो यहाँ पे इक्वेशन मुझे x dash y dash के टर्म में लानी थी. वैसे तो अगर आपके पास इक्वेशन इस लाइन कॉर्ड लिखनी है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो द पॉइंट A and B. I want to write a equation of tangent in terms of this point P. So we got it, and which is here you can see this equation 6 is identical with the equation of tangent. Equation of tangent T is equal to 0 at x dash y dash. T की क्वेश्चन क्या बताई थी, याद है, भूल गए, ऑन द कोनिक, यही तो इक्वेशन थी, क्यों भाई. सो हियर दिस इज द इक्वेशन, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, आई टोल्ड यू कि जो टेंजेंट इक्वेशन एट एक्स डैश वाई डैश होती है, इट इज व्हाट कि व्हेन यू हैव सम कोनिक एंड दिस इज अ टेंजेंट at the point here x dash y dash point is where, on the conic, the conic, but here this point is not on the conic, this point is lies outside the conic, है ना. ये एक डिफरेंस है, इक्वेशन भले आइडेंटिकल आ रही है, दिस इज आइडेंटिकल, बट द डिफरेंस दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में this point at on the conic, but here you can say, but here the point P x dash y dash, है ना, this is not on the conic, it is
आउटसाइड द कोनिक, कोनिक के बाहर है, क्योंकि अगर आप देख भी सकते, अगर इस पॉइंट को मैं कोनिक के ऊपर ले आया तो क्या होगा, फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फिर आप क्या क्या होगा उस केस में, यू विल नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट, क्या होगा, यू विल बी हैविंग ओनली वन लाइन, तो उसमें यू विल नॉट हैव एनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यू नीड टू टेंजेंट्स, so if p point shifted on the conic you will be having simple equation of tangent, तो वो सेम हो जाएगा ना, so here the point is outside the conic not on the conic ना, लेकिन ये याद करने के लिए आपको ये कि अगर आपको याद रखना है, जैसे सपोज करो कभी जिंदगी में ऑफलाइन एग्जाम जब होगा वहां पर आपको मेमोरी पे डिपेंड होना पड़ेगा, अभी तो ऑनलाइन में यू हैव योर नोट्स, तो वहां मेमोरी में जब डिपेंड होना होगा यू नीड शॉर्ट ट्रिक्स हाउ टू रिमेम्बर द थिंग्स, है ना, तो वहां पर यू कैन रिमेम्बर के जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वही इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, बस डिफरेंस के इन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द कोनिक, इन टेंजेंट पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक, ठीक है। इस पर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक प्रॉब्लम आई विल डू हियर, वन प्रॉब्लम इज योर होम असाइनमेंट प्रॉब्लम पेज 73 पर, I will not write the problem now. I am just giving you the number. Example 1, page 73. Example 1, page 73. This is your home assignment problem. You will do it by yourself. ठीक? यस सर। चलिए आगे मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्या, हाँ एक प्रॉब्लम आपकी है, ये मैं कराऊंगा, दैट इज योर क्लास प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में पेज नंबर 74, ठीक। यहाँ पर बिफोर प्रॉब्लम एक नोट है, इसे पढ़िएगा, देखिएगा क्या है यहाँ पर, जहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म हुआ है, एग्जाम्पल 1 शुरू हुआ है, इससे पहले वन नोट इज रिटन, इस नोट को पढ़ के अंडरस्टैंड करिएगा और मुझसे बताइएगा क्या है, इसी पेज 73 पे, वेयर दिस टॉपिक एंड्स बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल 1 दे हैव गिवन वन नोट, एक नोट लिखा हुआ है ना, जो नोट और रिमार्क्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल 2 है, फाइंड अ लोकस, गुड प्रॉब्लम है और डिपेंड ऑन दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ही है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स which are such that, लोकस का मतलब तो समझ में आता है भाई आप सब लोगों को, व्हाट इज, जब मैं लोकस लिखता हूँ, फाइंड द लोकस, क्या है लोकस, पाथ होता है ना, पाथ होता है कि जैसे कोई अगर आपका समथिंग इज मूविंग तो लोकस, जैसे आपको पढ़ा कि इफ यू हैव अ पॉइंट फिक्स एंड you have another point which is moving in such a way that the distance is always constant, तो क्या होता है इसका पाथ, ऐसे आप मूव कराएं तो क्या क्या होगा इसका पाथ, सर डॉटेड लाइन जो पास करते हैं तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, सर्किल सर्कुलर, सर्किल सर्कल। ये पाथ होता है ना, कि अगर आपसे क्वेश्चन था कि किसी ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जो किसी फिक्स पॉइंट से मूव कर रहा है इन सच अ वे द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, तो वो एक सर्किल आता है ना, तो इसी तरह से हर कर्व एक्चुअली किसी ना किसी पाथ का लोकस बनता है, हर कर्व, जो भी आप कर्व्स बनाएंगे, प्लेन कर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप प्लेन कर्व में मूव कर रहे हैं, इसी को अगर 3 डायमेंशन में मूव करेंगे तो ये आपके 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएंगी। So find the locus of a point which are such that the chords of contact of tangents drawn from them the chords of contact of tangents drawn from them, है ना, जो tangents है उनकी जो chord of contacts है,
drawn from them to the conic conic equation given है ax square plus by square is equal to 1। ठीक है, एक कोनिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो हमें कोनिक का आइडिया लग जाएगा। अगर ए बी इक्वल होंगे तो इट विल बी अ सर्किल, है ना, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द कोनिक। इन्होंने जनरल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। फॉर्म अ ट्राइंगल of constant area with the coordinate axis तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, अगर आप क्वेश्चन शुरू में एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार कम से कम ठहर के थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, हमें विजुलाइज करना होता है चीजों को। अब दोबारा पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। फाइंड द लोकस, ये फिगर में इरेज कर देता हूँ, ये फिगर इसकी नहीं है, इसे इरेज कर देते हैं। इसकी फिगर बनाएंगे अभी। तो फाइंड द locus of a point which are such that the chord of contact of tangents drawn from the conic, कोई ये कोनिक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्म अ ट्राइंगल, तो जिसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस व्हाट, एक तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, योर एक्स वाई, यू हैव अ कोनिक, तो कोनिक का जो टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए सपोज मैंने कोनिक ऐसे ले लिया, यू हैव अ कोनिक लाइक दिस ना, ये कोनिक हमने बनाया और इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी, सपोज आई एम टेकिंग, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा है कि एक ट्राइंगल बनेगा इसके साथ, तो ट्राइंगल बनेगा मींस व्हाट कि सपोज आई एम टेकिंग दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, है ना, ये लाइन आगे जा रही है लेकिन ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, लेकिन कहाँ से आ रहा होगा, व्हेन यू विल ड्रॉ टू टेंजेंट लाइंस, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ टू टेंजेंट लाइंस आल्सो, दैट विल बी अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज टू टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी हमने, बाहर एक पॉइंट है, तो आई एम टेकिंग अ लाइन which is touching at this point, this is your point P, जिससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, जिसको मैं नॉर्मली usually I take x dash y dash, तो one tangent is there and second tangent is passing through this, suppose इसे टच करती हुई जा रही है ऐसे, ओके, तो this blue color is your conic, you have a point, you just have this chord of contact, तो ये जो chord of contact है ना, chord of contact of tangents drawn from them to the coordinate to the conic form a triangle, तो इसने एक ट्राइंगल बनाया किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो ट्राइंगल कहाँ बनेगा, ये इट विल बी द ट्राइंगल, तो कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल बनेगा, सपोज इट इज द ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कैसे बन रहा है कि इट इज कांस्टेंट एरिया का है, ऑफ कांस्टेंट एरिया, तो मींस व्हाट कि अगर मुझे यहाँ पर लोकस निकालना है, तो एक तो आई विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, उसको हम जब कांस्टेंट रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ये पाथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज तो ये बात चल रही है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्रॉस हो रहा है, इसका यहाँ से क्रॉस होता हुआ जाएगा ये, है ना, इसके 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, तो आई विल यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और उससे सॉल्व करेंगे। क्लियर है भाई, प्रॉब्लम आप क्लियर हो गई है, ओके, बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, सो इट इज अ रफ फिगर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहाँ कोनिक आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना था कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये एक ऐसी लाइन है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कांस्टेंट है। ऐसी सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसी आपके पास बहुत सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो सकती है ना, मैं यहाँ मूव कर जाऊँ इस पॉइंट को, तो एक और आपके यू में हैव लाइक अनदर, तो ऐसे जो पॉइंट जो सारे इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि जब हम उनसे टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं तो दे आर मेकिंग अ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कांस्टेंट एरिया, उन सारे पॉइंट्स का लोकस बनाना है, ओके।
कंसेप्ट क्लियर है? चलो प्रॉब्लम करते हैं इसे। सॉल्यूशन। सो हेयर इक्वेशन, अब हमें मालूम है ये कोनिक इक्वेशन आपको गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सपोज s is given by this ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, सीधा लिया है, इक्वेशन 1 है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इसका, बताइए जरा। कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सपोज पॉइंट p x डैश y डैश, अभी क्या इक्वेशन निकाली थी, t है ना, t is equal to 0 where point is outside, what will be equation, ax x dash plus by y dash minus 1 is equal to 0। ये इक्वेशन किसकी है, इस लाइन की इक्वेशन है, दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस t is equal to 0, ये हमें इसकी इक्वेशन पता चल गई है। नाउ दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल डेफिनेटली पास थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो ये जो t है, ये जो इक्वेशन 2 है, इट विल बी पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि x से भी y करेगी, पास करेगी y से भी, है ना। गिवन दैट, गिवन क्या मतलब, इसे यू कैन से बाय द assumption, ये हमारे पास assumption है, यू कैन से, चलो गिवन दैट दिस इक्वेशन 2 passes through x axis and y axis। तो अगर x एक्सिस से पास करेगी तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पे, y0 है ना, x एक्सिस का मतलब यस सर, y की वैल्यू 0, y0, और y एक्सिस से जब पास करेगी तो x0, x है ना, ये होगा मालूम है। सो यू कैन से दैट मीन्स वी गेट, तो एक बार कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं व्हेन पासिंग थ्रू x एक्सिस, तो पासिंग थ्रू x एक्सिस में हो जाएगा ax x डैश plus this will be 0 minus 1 is equal to 0। This will give you the x coordinate, x is equal to 1 upon a x dash, है ना। सपोज ये कोऑर्डिनेट पर चल गया हमें 1 upon a x dash comma 0। Similarly when passing through y axis, similarly when when x is equal to 0 passing through y axis, you will be having first term is 0 plus b y dash minus 1 is equal to 0। So it will give you the y coordinate 1 upon by dash। So you got your y coordinate 0 comma 1 upon by dash। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था भाई, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है, तो इस ट्राइंगल के एरिया हमें मालूम है क्या होता है, Yes, sir. है ना। नाउ इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स are forming a triangle। now area of triangle, तो अगर ट्राइंगल को मान लो, इसको मैं नाम रख दूं ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस टाइप का लोकस। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Half base into y. है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट into एक्सिस y. बना रहे हैं इसलिए आई कैन अप्लाई हाफ, परपेंडिकुलर विल बी y एक्सिस and this will be x axis, this is equal to constant, constant को मैं मान लो c कह देता हूँ, c is some constant। so half oa की वैल्यू हमने निकाल ली है, oa क्या है आपके पास, ये जो x कोऑर्डिनेट है 1 upon x dash into ob और y कोऑर्डिनेट is equal to c। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो you got x dash y dash is equal to how much, 1 upon twice a b c। इसे मैं कुछ कांस्टेंट कह देता हूँ k, कि तो कांस्टेंट होगा। so this implies that x dash y dash is equal to k। तो लोकस क्या हो गया, so the locus is x y is equal to k, है ना, ये लोकस आ जाएगा। ये क्या होता है x y is equal to k, पता है क्या होता है ये, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर k पॉजिटिव है तो इट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? पढ़ा है कभी, नाम सुना है? नहीं? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर के आपके पास पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब आपके कोऑर्डिनेट इधर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर नेगेटिव है तो इस तरीके से आएगा। तो इसका अलग के लोकस क्या आएगा इस टाइप के पाथ का? द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहेगा कि इट विल बिकम अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज द लोकस। ये कब है? जब k ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भी, प्रॉब्लम क्लियर? आई थिंक इजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑन पेज नंबर 74 पे, पोल एंड पोलर। सिक्स 6.4 आर्टिकल है, 6.4 आर्टिकल, पोल एंड पोलर। तो पोल एंड पोलर क्या है? सपोज अगर मैं पैराबोला के लिए एक्सप्लेन करूं, सपोज इन पर्टिकुलर, सपोज फॉर पैराबोला, बाद में जनरल लिखेंगे इसे, जस्ट टू एक्सप्लेन। सपोज यू हैव अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, एनी पैराबोला प्लॉट कर देते हैं लाइक दिस, ओके, एंड यू हैव हियर सम पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से आई कैन ड्रॉ सेवरल लाइंस, यहाँ से हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। यू कैन हैव सो मेनी लाइंस लाइक दिस। मैं जैसे कोनिक को विल बी इंटरसेक्टिंग एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, है ना, ये हमने प्रूफ किया है। तो ये आपके इसको इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमेशा ये सेकंड बनेगा ना, सेकंड बनेगा ये। सो इट इज क्रॉसिंग लाइक दिस पॉइंट P इज फिक्स, P इज अ फिक्स पॉइंट, बाहर कोनिक के एक फिक्स पॉइंट है, उससे आई एम ड्रॉइंग different lines which is intersecting the conic. Here pole है, here it is parabola, so it is parabola, or it may be any conic. Now what I will take, I will draw the pair of tangents from these contact. तो इससे मैं pair of tangents draw कर सकता हूँ हमेशा, है ना? You can have pair of tangents from this chord of contact. Suppose this is pair of tangent, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया तो ये आएगी इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट लाइक दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, इससे, है ना? ऐसे अगर सेकंड वाली, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, this I'm taking different color, similarly this I can take like this, इससे अगर टेंजेंट ले it will be coming like this, from this point, second point, and from this means what, ये जो आपके अंदर सेकंड आ रहा है, जो लाइन आ रही है, it can become a chord of contact for this। तो इस तरीके से I can plot this। तो इनका जो लोकस आएगा, the locus of these point, ठीक है? तो इसका जो लोकस आएगा, लोकस क्या होता है? लोकस इज व्हाट, द पाथ। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे इस तरीके से, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स। इसको इफ यू विल ज्वाइन, दैट विल बी अ लोकस। इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, है ना? तो द लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स, किसके पॉइंट्स? द पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दिस लोकस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पोलर, ओके? तो पोलर इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड द पॉइंट P जो फिक्स है, जिससे हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड पोल। सो मींस द पोलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कोनिक। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी, आई कैन राइट अ डेफिनेशन, द पोलर ऑफ अ पॉइंट। तो जब पोलर होगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट होगा, है ना? पोल होगा फिर पोलर आएगा। तो द पोलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कोनिक is the locus of the point of intersections
of tangents at the extremities of the chords, ये जो है ना एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड, जैसे आपके पास एक लाइन ये थी तो इसकी जो एक्सट्रीमिटीज थी ये, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। दूसरी लाइन ये थी तो दीज टू एक्सट्रीमिटीज दिस एंड दिस, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड्स, थ्रू दैट पॉइंट, थ्रू दैट पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू जो आ रही है। So this is the polar, and the point itself, तो ये तो पोलर हो गया, is of the conic with respect to is the locus, तो ये जो locus आएगा is the locus, तो ये पोलर क्या आएगा हमेशा, it will be a straight line, पोलर जो है ना, and the point itself is the, and the point itself is called the pole of the polar, pole of the polar। बात समझ में आई भाई स्टूडेंट्स? Yes, sir. सर रिपीट है क्या? हाँ, रिपीट कर देते। सपोज यू हैव अ कोनिक एंड यू हैव अ फिक्स पॉइंट, टू थिंग्स विल बी गिवन टू यू, यू हैव अ कोनिक एंड यू हैव अ फिक्स पॉइंट। एक कोनिक है, यहाँ पे मैंने पैराबोला लिया, कोई भी कोनिक है आपके पास, यू मे हैव एनी कोनिक एंड यू हैव अ फिक्स पॉइंट हियर। तो व्हाट यू विल डू, you will draw different point lines from this, तो ये हमेशा इसको क्रॉस करेंगे तो आपको हमेशा एक कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, है ना, ये तो होगा, ये है, इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, ये कुछ आ रहा है इस तरीके से। सो द लोकस ऑफ all these point of intersections of tangents at the extremities of the chord of contact, that is the polar, and the fixed point is a pole। Is it clear? इन सब का locus, तो polar is always a straight line, ये हमेशा आपकी एक straight line मिलेगी, while this point P जो होगा fixed, that is called a pole of the polar। सर हाँ, लोकस स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सिर्फ पॉइंट नहीं होगा? नहीं, एक पॉइंट कैसे हो जाएगा, आपको एक ही कॉर्ड कोई में पॉइंट तो जब होता है कि जब आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा होता है। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी लाइंस, कितने पॉइंट निकाल सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं ना। अब ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट की पोजीशन क्या है। अगर ये पॉइंट आपका कोनिक में हो जाएगा उस केस में पोलर क्या हो जाएगी, देखो अभी एक पॉइंट इट इज आउटसाइड, इट इज नॉट ऑन द कोनिक, तो अगर कोनिक पे नहीं है, यहाँ से मैं आई कैन प्लॉट सो मेनी लाइंस, यहाँ से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट मैनी, है ना। तो ये सारी लाइंस की अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट लूं तो यू कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ टेंजेंट। वैसे भी लाइन क्या है, लाइन इज अ लोकस ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए लाइन बन जाती है ना। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, you will be getting infinite many points satisfying this relation, you have a line which is crossing the conic at 2 points, उनसे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पर मीट करेगी, दूसरा लेंगे वो यहाँ मीट करेगा। तो इस तरीके से जो भी आपके ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं इनका जो आप इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी लोकस लेंगे, दैट इज द पोलर। तो इट विल बी कमिंग ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पर केस है कि ये पॉइंट आपका कहाँ मूव हो सकता है। देखो अब ये पॉइंट बाहर है, यहाँ पर एक रिमार्क आप ले सकते हैं कि इफ दिस पॉइंट P इज ऑन द कोनिक, सपोज रिमार्क में केस अगर ले, सपोज इफ दिस पॉइंट P इज ऑन द कोनिक, इस पॉइंट को कोनिक पे ले लो, मीन्स व्हाट, सपोज यू हैव अ कोनिक, अगर पैराबोला का एग्जांपल ले रहा हूँ,
और पॉइंट P यहाँ पर आ गया आपके पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं पोलर क्या होगा, अब यहाँ से आप जो लाइन खींचेंगे क्या होगा, देखिए ये लाइंस होंगी इस तरीके से, ठीक। अब व्हेन यू विल ज्वाइन, सो व्हाट इट विल बी कमिंग लाइक दिस, है ना, ये क्रॉस, ये टेंजेंट होगी ये। सिमिलरली हेयर इसको क्रॉस करता हुआ, तो नाउ व्हाट विल हैपन, पोलर क्या आएगा बताइए। अब ये जो पॉइंट्स होंगे वो पोलर क्या आ रहा है, देन द पोलर ऑफ P इज द टेंजेंट एट P। इस केस में जो पोलर आएगा वो टेंजेंट एट P होगा, क्योंकि जो लाइन आएगी आपके पास, अब उस लाइन का पॉइंट, वो लाइन के जो ये पॉइंट्स जो आएंगे सारे, ये कहाँ आ रहे होंगे, ये इस लाइन पे आएंगे जो P से टेंजेंट होके जा रही है। देखो फिगर आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर एक लूँ, इससे आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी आपके पास इसी पर आ रही होगी, है ना। डिफरेंट पॉइंट से अगर आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट लेंगे इस पॉइंट की लाइक दिस, तो कहाँ आ रहा होगा ये पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन, ये लाइन तो यही रहेगी ना टेंजेंट, इसी को आगे बढ़ा दो, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ आएंगे, इसी टेंजेंट लाइन पे। देखो इनका इंटरसेक्शन है तो लोकस है। तो अगर पॉइंट P आपका कोनिक पे हो गया तो व्हाट विल हैपन, द पोलर विल बी द टेंजेंट एट P। देखिए आइडिया लग रहा है फिगर से, नहीं लग रहा। तो यू आर हैविंग नाउ पॉइंट हेयर, जैसे मैंने एक ये लिया, ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। इस पे जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, दिस, और ये लाइन आएगी, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये लाइन ही पे तो आएगा जो टेंजेंट लाइन है, ये इसी का लोकस होता है। sir. तो सारे पॉइंट्स कहाँ आएंगे, वो इट विल बी लाइंग ऑन द टेंजेंट लाइन थ्रू P। क्लियर है। तो if P is on the conic, then the polar will be the tangent at P। ओके, इसकी वन मोर डेफिनेशन, if any second, टाइम आई थिंक ज्यादा नहीं है, class will end it, so I will continue in the next class। If any second